you are a forced borrower. The moment you are a forced borrower, they will dictate terms, you can't dictate. So either you improvise your competency by strong manufacturing, which cannot happen overnight. You reduce import, consumption import, you cannot change much because we are 140 billion people in the country. You just can't do it overnight. You have to take time. And when globally things slow down, your exports take a beating. Yes. Okay. Yes. So now when market itself is shrinking, and other people who are relatively butchered in terms of currency, which is weakened significantly, and you are stronger, they have a competitive advantage because their currency is weak. So they have a much better pricing power. So they will export more. They will export more. Your exports will take a beating. Market shrink ho raha hai, plus you are deficit can increase. Yes. So this is problem, not your inflation, your growth, your rates. This is not the problem. So we have to globally problem. This we have to tackle this now. At this point in time, we are assuming Fed from 4 will become 4.75 over a period of next 4 months. If that is true, and second leg market is assuming the problem will get solved in 3 months to 6 months, and everything will be okay, inflation will be down, rates will be higher, then you start cutting rates subsequently, which to our mind may not be as straightforward as forecasting. Because these things are structural in nature, they take time to recover, and from 0 we have become 5, which is huge delta, and the impact will be seen over the next 6 months. And we have not yet reached 5, we will reach 5 in some time, and then there is a possibility, which is a low probability, but still there is a possibility that we may talk about 5 quarter, 5 half also. Yes. Because still inflation is sub 8%, it is not sub 6%. Still, it will take time, it will not collapse overnight. And even if it collapses, it will be still higher. So for all you know, next year, this time when we sit and talk, you may have rates at around 5 and inflation at around 5. Okay. So still it will be upward journey rather than downward journey, which market is so as of now factoring today 10 years is at 385, 2 years is at 440. Remember the 2 year mark. 2 years is still at 440. Overnight rates are expected to go to 5%. So that journey is still upward. It's not downward yet. 10 year theek hai, because of market dynamics, it is trending though, but still the trade is sell on dips. So what all your concentration should be on the shorter end, what is happening on the shorter end, and you have to see what is happening in the currency. So that is the core agenda. Then you come to India. Now India, in terms of inflation, is very well placed. Your inflation has softened recently. It is softened further. In terms of trade inflation dynamics, 1 year forward inflation is close to 6. You are already at 6 in terms of rates. So you are neutral somewhat. You need to go to 6.5. So that journey will be covered in the next 3 months. 6.5, you will be overnight, or operative rate will be 675. 675, say 1 year, where should be 1 year? 1 year should be at around 7 quarter. We are at around 7. 5 years should be at around 740. You are at around 715. The 2025 will go per jayega. And your 10 years should be at around 7.5, 775, depending on market dynamics. So there will be a pressure on the 10 year. Definitely. 5 year still can be justified at 7 quarter also. It is fine. If you don't expect much tightening, inflation is towards 5, then 5 year is a fine. So 5 year corporate bonds are not moving kind of, because the dynamics have changed now, because there is a significant deleveraging happening in the economy, demand remaining constant, supply plummeted, the demand overtakes supply. So that's why the corporate bond yield spread is compressed. So as economy starts going back again, supply or demand for the money from corporates will increase. That will take 6 to 8 months, and therefore you will see spread also not coming at longer. So people are, they were getting that money from banks at a cheaper level. They wanted money also. Savings were there and they had money, so they didn't want as much because expansion उतना भी नहीं कर रहे. Working capital चाहिए तो वो बैंक से वैसे सस्ता. So that was working well. Now situation will change gradually, and therefore you will see issues coming in, and you will get some yield spreads over there. But
There used to be a time it was simple methodology, 1 year bank CD का है उसके ऊपर सब खाने के. अभी 1 year bank CD still will be at 8 quarter, maybe 8.5, depending on time to time. But your PSU and corporates will not go higher than that. But yes, if the GSEC itself gets adjusted, then obviously it has to trade at that higher GSEC. Therefore, you will get the level also equally spread adjusted. So at the end of the day, in our analysis, 3 to 5, 3 to 6 years is the safest spot. After that, the curve flattens significantly. If you want to lock in yourself for such long time for your needs, because curve flat हुआ ही क्यों है? Because ऐसे ज़्यादा लोग हैं जिनकी need है long term, so they are buying those assets. So they are buying those assets, so the curve is flattened. So अगर आपकी need है तो level is attractive, you can lock in for longer time. But yes, volatility will be there. You will have to bear volatility. There is a possibility that 3-month return is negative. You will have to hold it. And that possibility is significantly less in the 5 year, because 5 year yield may not go that high to make it negative. So that is the sum and substance of the day. And if you look at 2 year, 7.5, almost you can get YTMs of 2 year products, 7.5, 3 year, 5 year, sub 7 quarter to 7.5 YTMs के band में घूम रहे हैं. And it is reasonably pricing in a 6.5 kind of repo rate. अगर वहां से tightening और बढ़ती है, liquidity और tighten की जाती है, then probably the game will change. We need to be cautious about it in this time, because we are still not sure that we are done for the day and the trend will start down. So that's something that we can have questions. What is your view, Abhishek, on the upcoming policy? Policy is 35 basis point at least as a base case, Hike. but high, yeah. But 50 can be done, and he would like to front load as much as possible and reach that mark as quickly as possible. Pressure is there on the currency, because all said and done, on the rear which we measure the currency, we are at 123.24 still. So या तो other currencies adjust हो जाए, हमारा rear automatically नीचे हो जाए, हम लोग यहीं के यहीं रहे तो ठीक है. अगर नहीं होता है तो you need to adjust it very quickly. Adjust करना पड़ेगा. कुछ International. एक्सीडेंट हुआ है, बस स्कोप नहीं है कुछ भी गलती करने का. एक गलती की and we are back to. So we don't have any scope for error. जो पहले काफी था, अभी 350-400 basis point से हम 250-300 basis point के बैंड में पहुंच गए on rates adjustment. So which is quite good. वो होना भी चाहिए, लेकिन because dollar is a reserve currency, so वो advantage से edge मिलता ही रहेगा. हम गलती करेंगे तो punishment मिलेगी, अगर वो गलती करेंगे तो उनको नहीं मिलेगी, तो भी हमें punishment. मतलब just अभी I mean in this today's scenario अभी वैसा वाला बात नहीं है, because what I feel I have, maybe मैं गलत हो सकता हूँ, मान लीजिए इंडिया हमेशा एक इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री रहा है, सो वो फिस्कल डेफिसिट का, करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा ही रहा है, आज का नया चीज नहीं है. हाँ, तो जितना सिर्फ तो ले लेना, कोई issue नहीं. एक मिनट में हेलो, हेलो, हाँ 75 crores 70 crores क्या है ना, हाँ 70 ले लो, हाँ पूरा ले लो. सॉरी, सो आप कुछ मैं बोल रहा था कि ये इंडिया बीइंग एन इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, हम लोग शुरू से ही ये करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट इसी में हमेशा ही जीते आए हैं. This time around, I guess we have a very good consumption because of the size of the population. दूसरा, there are few things which are working in favor of the Indian economy. जैसे कि मान लीजिए आपका collections are very bad, और in terms of GST, या फिर मान लीजिए जो तेल का भी सब्सिडी वगैरह होता है, उसमें भी अभी गवर्नमेंट का काफी restrictions और करे रोल है. So मुझे नहीं लगता कि वो डेफिसिट जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रहेगा. On the growth part, I feel मतलब हम लोग को जो लग रहा है कि भाई apart from 1 or 2 quarter growth will be back, इंडिया में वापस आ जाएगी.
सो ये जो पेन है, दिस इज फॉर वेरी स्मॉल टाइम, मोस्टली द पेन इज गॉन। यहाँ से हम लोग तो आगे ही देख रहे हैं, हमारा व्यू है। एंड रेट्स एज यू सेड सर, वुड सेटल समवेयर अराउंड 10 year जिसे आप बोल रहे थे 770। ओवरऑल वी आर, आई मीन, वेरी बुलिश ऑन द इकोनॉमी एज वेल एज ऑन द, तो हमारा व्यू तो ये है। देखिए आपने फैक्चुअली सब कुछ बराबर बोला। इफ यू आर बुलिश ऑन द इकोनॉमी यू कैन नॉट बी बुलिश ऑन रेट्स। हाँ, मतलब जैसा आप हम वो बोले कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स रेट्स वाला वो खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत जो जो फैग एंड जिसको बोलते हैं सर वो बचा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, हमें 40 करोड़ तो हम लोग का रिलायंस तो सारा इंटरनल कंजम्पशन पे है, तो एक्सपोर्ट से इतना इफेक्ट आप ले लें। ये सर बोल रहा कि ग्लोबली अगर डॉलर कहीं पर 30% डाउन हुआ, डॉलर जो मान लीजिए कहीं कोई भी करेंसी, तो इंडिया 12-15% रहेगा, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डगमगा जाएगा। वो डगमगाएगा, पर इंपोर्ट में तो सर ये तो अगर वहां पे मान लीजिए यूरो यूएस वाले ने अभी और बढ़ा दिया 150 पॉइंट, तो तुम्हारा जो रिस्क और वो रिवार्ड के हिसाब से रुपया फिर वापस उधर डॉलर में चला जाएगा, यहाँ सेलिंग आ सकता है, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। इंडिया से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लिक्विड फंड बेचते हो, ठीक है, सबकी वाईटीएम 7%, कुछ लोगों की 7.5 हो गई, आप इसको रिडीम नहीं करोगे शायद, हमारे साथ रिलेशनशिप है, आपने रिडीम नहीं, मान लीजिए नहीं किया, लेकिन आपको फ्रेश एलोकेशन करने कहाँ करोगे? 7.5 एक पॉइंट आएगा यार, इसका तो कंसिस्टेंटली 7.5 मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है, तो एक टाइम आप रिडीम करना, तो ये जाके 7.5 हो जाएगा, ये 7.5 से 7.25 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ सप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिमांड हो जाएगा। तो करेंसी यही, करेंसी जब अभी सब जगह अफरा तफरी मची, सब भाग दौड़ कर रहे हैं, जब जिस दिन एलोकेशन शुरू होगी उस दिन सबसे पहले खरीदी कहाँ शुरू होगी? जहाँ सबसे ज्यादा वीकनिंग है, तो आपको एलोकेशन नहीं मिलेगी फ्रेश, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो आपको भाव वो देना पड़ेगा जो वो दे रहा है, तो आपको वाईटीएम मैच करनी पड़ेगी। एफएमपी भी वही करते हैं, वहाँ बाजार में यील्ड मिल रही है, आप यील्ड दे दोगे तो this is why you need to be competitive। ये प्ले होगा ग्लोबली, तो की फैक्टर्स होते हैं, ऑयल है, तो हम बिना ऑयल के इकोनॉमी चलेगी नहीं, इसलिए हमारा वो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, वो जो थीम चल रहा है, वो अगर वो कर लिया आपने कंट्रोल, तो आप 80 के आप 60 हो सकते हो रुपये डॉलर, तब आप कंट्रोल कर सकते हो कि मैं क्यों दूं तुझे, व्हाई शुड आई गिव, अभी तो आप फोर्स्ड हो कि नहीं भैया तुझे देना पड़ेगा। ऑयल और गोल्ड में तो सर अभी तो गवर्नमेंट बेटर ही मैनेज कर रहा है, ड्यू टू मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रशियन ऑयल अपने पास जो है, मैनेजमेंट बढ़िया है, वो डिबेट नहीं, डिबेट ये है कि डेफिसिट है, सरप्लस डेफिसिट ही है सर, तो हमेशा से डेफिसिट में ही रहा है, डेफिसिट में चल रहे होंगे तब तक तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और बढ़ा है 6.3 What Abhishek is saying, moreover they can dictate the term। तो दैट इज द मार्केट के हिसाब से सम एंड सब्सटेंस की आप फिस्कल डेफिसिट छोड़ दो एक बार के लिए, हमारे इंटरनल है, ट्रेड डेफिसिट इज एक्सटर्नल, it is not in your control, and what happens is your savings goes in gold, it becomes non-productive, it becomes inflationary at point in time, because savings are going into gold, and जो तुमने डॉलर बचाया यहाँ डॉलर चला गया, जो हमारी टेक सेक्टर ने डॉलर इनफ्लो लेके आया, हमको $100 बिलियन रेमिटेंस आता है सारा, वो सारा इधर उधर बाहर चला जाता है गोल्ड में, गोल्ड में चला जाता है, जो कि अनप्रोडक्टिव, तो कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव, अल्टीमेटली तुमने डॉलर सब्सिडी दे दी, डॉलर की आज यही हालत होनी चाहिए और खराब हालत होनी चाहिए, बट डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, क्यों? सिक्योरिटी के लिए तो यही होना चाहिए था ना कि डॉलर शुड हैव डेप्रिशिएटेड, बिकॉज वहाँ इन्फ्लेशन है। अगर यही इन्फ्लेशन तुम्हारे इधर था जो हमने 2013 में देखा, तो क्या हुआ था? फटा था ना करेंसी, 20% हम अकेले ठुके थे, 20%, बाकी लोग तो नहीं गए थे। आज सारी दुनिया फटी, हम नहीं फटे, क्यों? बिकॉज फंडामेंटल स्ट्रेंथ है ना, इसीलिए। उसमें एक और जैसे एफडी का रेट है, एचडीएफसी मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एलआईसी हाउसिंग का रेट अगर ज्यादा है, बजाज फाइनेंस का रहा है, तो उसको भी कभी ज्यादा करना पड़ा है, 7.5 करना पड़ा है एचडीएफसी को। कंपटीशन में कुछ लेते रहना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, वहां पे पहुंच गए, एलोकेशन नहीं हो, पहुंच गए तो वो यही देखेगा भैया किसका बेटर है, ट्रिपल ए किसका है, दोनों ट्रिपल है तो किसका बेटर है। आउटफ्लो नहीं हो रहा, बिकॉज इनफ्लो नहीं हो रहा, आउटफ्लो नहीं हो रहा है, दैट इज फेयर, वहां बच जाओगे। जब ये प्रॉब्लम 6 महीने बाद आएगी, जब इनफ्लो की बारी आएगी, तो भाई ये सब तो ऐसा है, देखो आपका ट्रेड कैसे फट रहा है, धीरे धीरे मार्केट बोलेगा ये तो फटते ही रहेगा, तब तुमको जाकर तुमको रेट बढ़ाना पड़ेगा जाके कि भैया अट्रैक्टिव यहाँ छूट जाएगा टू बोरो एट अ हायर लेवल। और डॉलर यील्ड ऐसी हो गई है जो आज तुम डॉलर में ज्यादा कमा सकते हो, तो रुपये को कौन देगा? तो इट इज वर्ल्ड ओवर गोल्ड स्टैंडर्ड ना डॉलर, वी आर स्टिल नॉट दैट लेवल।
can't afford to do that. You have to remain competitive. टाइटनेस तो कर रही है ना, आउट परफॉर्मेंस 100 बेसिस पॉइंट, आप 10 बेसिस पॉइंट रुकता तो यहाँ 50 बेसिस पॉइंट रुका। क्या बुरी हालत थी हमारी एक टाइम में, तो छींक देता था तो यहाँ तो हम भाग हाँ, जाते भाग थे। ठीक है सर, तो SIP आखिर में बचा है। सबसे पहले इस विषय में एक आर्टिकल आया था रिगार्डिंग कैपिटल गवर्नमेंट बजट में, तो कैपिटल गेन स्ट्रक्चर चेंज है ना, हाँ, वो चेंज एक सिमिलर करने वाला सब एसेट्स के लिए यूनिफॉर्म। वेदर अपना इंडस्ट्री में भी कुछ इफेक्ट आएगा, वेदर कोई ऊपर में कुछ आप लोगों का कुछ बात चल रहा है इसके बाद इक्विटी डेट कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी डेट रियल एस्टेट सब चाहिए कि 1 साल 3 साल 2 साल अलग अलग का प्रॉपर्टी में दूसरा है, क्रेडिट में दूसरा है, इक्विटी में दूसरा है। तो देखिए मेरा थीम हमेशा एक रहा है, मेरा पर्सनल थॉट है, सेवर को सेविंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी खड़ी होती है। टैक्स उसका दुश्मन होता है, जो सेवर होता है वो टैक्स से बचने के लिए इकोनॉमी से बाहर चला जाता है, जो गोल्ड खरीदेगा, रियल एस्टेट जाएगा, इधर करेगा, लेकिन वो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। अभी बड़ी मुश्किल से हमारी इकोनॉमी फॉर्मलाइज होना शुरू, जिसकी वजह से हमको टैक्स इम्प्लीकेशन देखने को मिला। अगर यही टैक्स रेट जो 1.50 बन गया है, जो 1.10, बड़ी मुश्किल से 1.10 की हम असम्पशन कर रहे थे, 1.10 से 1.20 सोच रहे थे, 1.50 पे है, फिर भी हमको प्रेशर है। तो यही चीज 2 से 3 साल पहले हो गई होती तो हमारा 10 ईयर यील्ड 5-5.5%, बट ये बीच में कोविड हो गया, ये हो गया, सब प्रॉब्लम्स आ गए, इट्स अ डिफरेंट मैटर। बट सेवर को आपको टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए, एंड यू हैव टू बी, सबको एक जैसा रखोगे, कंजम्पशन जिसको कंजम्पशन करना है वो टैक्स पे करे, सेवर को टैक्स एडवांटेज मिलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे सेवर टैक्स पे करके आ रहा है गेम खेलने, तो उसको फर्दर टैक्स करते, फिर फर्दर टैक्स करते भाग जाता है, एक बार देगा उसको दूसरे बार भाग जाएगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना तो सेवर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ये सेवर रहे इकोनॉमी में। आज यूएस रेट क्यों बढ़ा रहा है? वो ये चाहता है कि तुम खर्चा मत करो, मेरे को दो, लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहा है। लोग कब देखा आपने, कभी देखा कि चलो रेट आरबीआई ने 200 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ा, CIC 2 लाख करोड़ से कम हो गया? कभी नहीं हुआ, वो कभी नहीं आएगा जब तक कि टैक्स तुम ठीक नहीं करोगे। So yes, there is a possibility. I have not done any much of thought on that. So there is a possibility, and it should be done accordingly. It may have repercussion on the asset classes, but it should be done. There should be some semblance. किसी जगह आर्बिट्राज क्यों देने का? मैं एक बच्चा अच्छा है, दूसरे बच्चे को, मतलब दोनों बच्चे तुम्हारे ही है ना, सब एसेट्स एक साइड के, सबके लॉन्ग टर्म 3 साल है तो 3 साल, 3 साल या तो 1 साल, जैसा भी करना वैसा, तो उस पे टर्म स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाता है। वेदर आप लोग ऊपर में कहीं MP या सेमी लेवल में कुछ ऐसा कोई डिस्कशन या अभी नॉट टू माय नॉलेज। हाँ, दिनेश जैन और सर्वेश जैन भाई भाई। हाँ कमल, हाँ हाँ, आप वैभव दिनेश जी का लड़को, कमल म्यूट कर ले। वैभव रामपुरिया को नहीं, वैभव जैन है। हाँ 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 हाँ, अपनी म्यूट कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट वी आर डूइंग। नहीं नहीं, दिनेश जी देख, ये नहीं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हो गया, छोड़। सर सेकंड ये सर ये MSCI जो उसमें अपना इंडिया ज्वाइन करने वाला, उस पर क्या प्रोग्रेस? अभी तक जैसे आपका क्वेश्चन के लिए एट इंडस्ट्री लेवल फ्रॉम फोरम पर्सपेक्टिव, प्री बजट मीटिंग्स अब होगी, दिसंबर में होती है। वैसे मार्केट पार्टिसिपेशन सजेशंस मंगाएंगे तो दिसंबर में होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ देयर इज नो फोरम डिस्कशन दैट इज हैपनिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड आई थिंक प्री इलेक्शन ईयर में कुछ रिडिकुलस करेंगे, मतलब कुछ स्पोकी करेंगे 23 के पहले वाला सवाल फिर वापस नहीं करेंगे। हाँ, now you can check it. Whatever will happen will be beneficial for the savers. मतलब किसी को हर्ट नहीं करेंगे भैया, ये तो ऐसा है वैसा है। तो इलेक्शन probability is very high that the budget this year would be on the lines of 2018 इलेक्शन ईयर के पहले जो मिडिल क्लास को काफी सर लेवरेज दिया था, उससे नहीं मिलेगा। आप सर दूसरा क्वेश्चन। सर एक दूसरा क्वेश्चन ये है, तो MSCI जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का जो है, उसमें भी कुछ वर्किंग है, जो बॉन्ड इंक्लूजन की बात हो रही थी, वो वर्किंग चालू है। बजट तक बने थे अपने, जो बहुत सारे उसमें न्यूआंसेस हैं कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए क्या है, तो प्रॉब्ली इट्स अ सेंसिटिव मैटर, सो दे विल टेक अ कॉल नेक्स्ट ईयर के लिए डेफर कर दिया ना। टैक्स एंगल भी तो है ना,
वो टैक्स वेव ऑफ करना है कुछ, तो एक आदमी को वही बेनिफिट दो, एक आदमी को मत दो, प्रॉब्लम है। और फिर ओनरशिप का इशू है, सेटलमेंट का इशू है, तो थोड़े बहुत इशू है, कहाँ से कहाँ तुम्हारा बॉन्ड चला जाएगा। अगेन देन यू विल बी इन देयर मर्सी। सबसे बड़ा एक्सटर्नल सेटलमेंट का इशू है, आरबीआई नहीं चाहता कि डॉलर सेटल। एमएससीआई में सर इंक्लूड होना अच्छा बात है कि आपके साथ एक बॉन्ड को बॉन्ड डेफिनेट हो सी, उस पर तुमको बस डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक चली जाएगी। और जब वो डॉलर डिनोमिनेटेड सेटल होगा तो उसमें वापस करेंसी प्रेशर हमारे भी करेंसी प्रेशर तो वापस करेंसी प्रेशर भी आएगा, यील्ड का प्रेशर भी आएगा सर। कोई भी मन मर्जी चला जाएगा, जैसे चला आप जाएगा। पहले जो बात हुई पहले छींकते थे तो जैसे इक्विटी में अगर होता था ना, एमएससीआई वैसे होगा तो यहाँ बाहर से बॉन्ड ले लग जाएंगे तो फिर सर वो तो अभी भी तुम चाहती हो ना लोग ले, इंडेक्स में है तो उसमें जितना फ्लो आएगा तो उसका तुमको फ्लो मिलेगा, और जाएगा तो तुमको फ्लो भी वैसा ही वैसा जाएगा। मिलेगा। तो बट यही है कि तुमको ये हमेशा डिसिप्लिन में रहना रहना पड़ेगा कि भाई हो जाए तो मेरे से ना जाए। मेरे से नहीं जाए, उससे जैसे कुछ रेशियो से जाए। वेटेज तो मेंटेन रहेगा, लेकिन एज अ फंड मैनेजर अगर आपको कंडे फॉलो करना है तो उसमें से आप कैसे चूज करोगे कि मैं ए को बेचूं, बी को बेचूं, सी को बेचूं। तो जो आउट परफॉर्म कर रहा होगा उसको आप रखोगे, जो अंडर परफॉर्म कर रहा होगा उसको बेचोगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, आउट परफॉर्मर को लोग बेचते हैं, अंडर परफॉर्मर को लोग खरीदते हैं या छोड़ देते हैं कि इसको कैसे बेचूं, या प्रॉफिट है यहाँ बेच देते हैं, लॉस है छोड़ देते हैं। यस कोच जी, हमारे आगे नहीं नहीं no. सर आपको लग रहा है अभी 50-20 बढ़ेगा तो आपको लगता है इंटरेस्ट रेट साइकिल डिफिकल्ट है, लेकिन कब तक रिवर्स होने का लग रहा है? 3 महीना रिवर्सल तो बहुत बुरा था, रिवर्सल मार्च अप्रैल नहीं रिवर्सल हाँ ये तो एकदम नहीं। रिवर्सल तो चांस ही नहीं है मार्च, आप पीक भी नहीं पहुंचे। अच्छा पहुंचेंगे पीक जब तक नहीं आप बोल सकते सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर तो आएगी ना, सेकंड हाफ ऑफ 24 2024 23 बोल रहे हैं सर, ये 24 बोल रहे हैं। 24 सेकंड हाफ ऑफ 24 में भी विजिबल कि हाँ शायद दिख रहा है उधर। बट जैसा आप देखो अंडरटोन इकोनॉमी में डिमांड प्रेशर है, अभी अभी हम मिले तो डिमांड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग, डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, गाड़ियां बिक रही हैं, सबको प्रॉब्लम है ही नहीं किधर, तो ये साइकिल गाड़ियों का सर 6-8 महीना तक नंबर नहीं वेटिंग है। अभी तो हाई एंड कार्स स्लैक आएगा तो ना कट करेगा आरबीआई। अभी तो न्यूट्रल नहीं पहुंचे, उसने ये नहीं बोला कि मेरे न्यूट्रल, अभी भी अकोमोडेटिव है। वो आपकी जानकारी के लिए अकोमोडेटिव स्टिल, इतना रेट हाइक होने के बाद अभी भी अकोमोडेटिव है, लेकिन बोलो दिसंबर तक भैया पिक आउट हो वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम? नहीं कार का डिमांड जो एकदम बयान है, फ्लाइट्स का रेट एकदम मतलब स्काई पर है, होटल्स का नंबर नहीं। सर बोलते पिक आउट अभी हो जाएगा क्या इनके सब? पिक आउट सर आप दिसंबर 23 देखो दो दिसंबर चीजें हैं, एक तो आप स्टेबल रहेगा 10 ईयर की पिक आउट की बात कर रहे हो या आप रिपो रेट के पिक आउट की बात कर रहे हो? 10 ईयर So 10 year can peak out anywhere in by March. 750 But there's a caveat that US में और नहीं stability आने चाहिए, तब तक का डेटा पॉइंट, अभी डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और लोगों के पास एक आदमी के पास 1.5 जॉब है, मतलब ज्यादा जॉब है, इसका डिमांड है। जॉब्स आर देयर, पैसा है, खर्चा करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो बोले इन्फ्लेशन से तुम क्यों डर रहे हो, आम आदमी को प्रॉब्लम ही नहीं है, तो रेट बढ़ाऊंगा कि काटूंगा, तो ये बढ़ाऊंगा और रखूंगा भी ऊपर ही। सो फॉरगेट, सेंट्रल बैंक बैंकरप्ट हो सकते हैं अभी ये इस स्पीड से बढ़े रेट्स। वो कैसे हो सेम लॉस होगा तो बैंकरप्सी आएगी ना, बिकॉज यू आर रनिंग टर्न। ये 1% से 5% रेट गया, किसी की बुक में तो लॉस आया ना, लॉस आएगा। कितना छापोगे? ये प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द यूएस रिजर्व करेंसी है, अगर रिजर्व करेंसी नहीं होता तो यू आर बैंकरप्ट, कौन देगा उनको? लेकिन बाय दैट लॉजिक सर, जो भी अपने अगर इंडिया में लोगों के पास आज भी मतलब जो खर्चे करने की टेंडेंसी है, तभी डिमांड सब जगह इतना पॉइंट है। होटल में जगह नहीं है, फ्लाइट का भाड़ा इतना है, गाड़ी का 8-9 महीने का। सेम चीज यूएस में लोगों का होगा, उनके पास भी सेविंग्स होगी, तो वहां भी इतना जल्दी तो pull off नहीं होने वाला है। समथिंग कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी का पैसा मिला है, जो मिला है, खर्चा नहीं हुआ है,
तो जो वहाँ भी जो इतना मिनिस्टर ऑफ पूरा वो पैसा आया कहाँ से? They printed that money. कोविड के टाइम स्टिमुलस Stimulus देते हो, so मेरा आर्गुमेंट वही है कि at the end of the day stimulus is going to government balance sheet. Government को टैक्स मिला नहीं पैसा, आया कहाँ से? It is reflecting in inflation. Inflation is not 8%, it is 12-15%. इट इज अंडर रिपोर्टेड यूएस Underreported. सर ये जो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट भी तो अब इस अगला क्वार्टर से कोई बेस इफेक्ट भी दिखेगा। हाँ, but as from central bank perspective मान लीजिए 100% इन्फ्लेशन थी, ठीक है, 100% मेंटेन हुई, अगले साल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी, नहीं भाई, बस यही तो। इफेक्टिवली बिकम जीरो, आप रेट काटोगे, 100% था ये। वो तो 100% तो है ही। आप रेट काटोगे, रेट कटने का हिसाब जरूरत से रेट काटना आप खुद सोचो आप क्या करोगे, कम नहीं ठीक है, होगा, बढ़ा नहीं है, नंबर कम नहीं नंबर वो प्ले होते लेकिन सेंट्रल बैंक स्टेबल है। वैसे नहीं प्ले 7% का करता, 7% ही रहा, 5 तो नहीं हुआ ना। सेंट्रल बैंक विल नॉट प्ले दैट वे, ये सी सीक्वेंशियल मोमेंटम कितना है, प्राइसेस ईज हुई है नहीं हुई है, ये द मोमेंट यू रेट काटोगे फिर वो 101 103 104 पर करना शुरू कर देगा, और ऐसे होता नहीं है, थ्योरी बात कर रहे हैं, ऐसे डजंट हैपन दिस वे, एक बार मोमेंटम पकड़ती है इकोनॉमी छूटता नहीं है अगले 200 बेसिस पॉइंट। आप यूएस पर कहां पे पिक आउट देख रहे हो और इंडिया का कहां पे इन टर्म्स ऑफ वहां का 10 ईयर, यहां का 10 ईयर, वहां का 10 ईयर तो कहना डिफिकल्ट है बिकॉज़ इट्स अ ग्लोबली ट्रेडेड प्रोडक्ट और इट्स अ मच डिफरेंट प्रोडक्ट देन इंडिया बिकॉज़ हाईली डेरिवेटिव ड्रिवन, इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पे, फिक्स्ड रेट कम ट्रेड होता है कि भैया मेरे पास पड़ा हुआ, मेरे को बेचना ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव है, फ्यूचर पोजीशन है, अगर आउट ऑफ मनी होगा तो आपको बेचना पड़ेगा, आउट ऑफ मनी, तो वहां पे वो सिचुएशन होती है। वहां का इंटरेस्ट रेट कहां पे? एट दिस पॉइंट इन टाइम 500 पॉइंट तो है, उसके बाद देखते हैं डेटा कंट्रोल तो है, क्योंकि ये गेम बहुत डिफरेंट है, इट वी हैव नेवर सीन सच वाइड गैप। इंडिया की नॉट दिसंबर में आधा % का बात है, आइडियली उसके बाद एक्सपेक्टेशन है कि वो आधा कर पाएगा, 25 पे आ सकता है, या फिर आधा मेंटेन करे या 25। तो आधा 25-25 करके 5 तो पहुंच जाएंगे, 5 के ऊपर हो फिर गया। गेम कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगी सर, 5% रेट इन यूएस डॉलर इज अ डिफरेंट गेम, और ये मार्केट को भी फर्क है, लेकिन वो वहां होगा एक्चुअल में तो फर्क एक्चुअल से ज्यादा देखो है। एक थ्योरी अलग होती है, मुझे मालूम है, जब वो आप एकदम आता है सामने तो सिचुएशन अलग हो जाती है। सर जनवरी 22 में जब सोफर मतलब क्लोज टू 0.10 0.25 0.30 इस लेवल पे हुआ करता था, तब अपने यहाँ एक कोई फंड मैनेजर आए तो बोले कि अगर यूएस में 2.5% रेट हो गया ना, सारा पैसा यहाँ से वहां चला जाए। 2.5% भी इतना इंपॉर्टेंट था, तो अभी तो वहां पे 4 पे ट्रेड कर रहे हैं, 5 का बात कर रहे हैं, 5 का बात कर रहे हैं। और 2 साल का बॉन्ड 4.5 चला पे गया था। हाँ। पूरा उल्टा चल रहा है सर। हाँ, पहले तो 3 करोड़ सोने में बहुत दिन बाद चला था। 2 साल तक रहेगा, सबसे बड़ा सब यूरोप सर्वाइव, हाँ जी, यूरोप सर्वाइव करेगा अगर इस इतनी हाई रेट मैं बोल रहा हूँ कि कितना प्रॉब्लम आएगा ये कौन करेगा, वही survive करेगा ना। इन द ग्लोबल मार्केट, विल हैव टू बी, रशिया क्या करने वाला है वो भी पता नहीं है, विंटर्स आर कमिंग, अभी विंटर सस्टेन तो करो फिर बात करेंगे आगे। सर अगर मार्च में लगता है सबकी रेपो रेट लास्ट हाइक होता है हमारे फरवरी में या मार्च में, वहां पे भी फरवरी मार्च क्वार्टर में मैक्सिमम ग्लोबली और इंडिया में भी रेट हाइक साइकिल खत्म हो जाएगा, राइट? तो मे बी रेट डाउन साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, बट जब रेट हाइक साइकिल खत्म होगा, क्रॉस हो जाएगा, वहां एक रैली आपको दिखता है कि खत्म हो गया। रैली किस बेसिस पे करोगे, सप्लाई तो पड़ा ही है ना, आपको 20 लाख करोड़ का माल बेचना है, कितना चाहिए आपको? कम रहती है फर्स्ट हाफ से अरे कंपेयर। वहां तक क्योंकि पहुंचोगे तो तब अप्रैल ना। फर्स्ट हाफ आ गया ना, अभी फिर आउट हो गया, नया साल का। जितने लगता है ना 2 सेकंड के अंदर, स्पेस तो चाहिए नीचे, स्पेस ही नहीं है ना, कितना खरीद लोगे आप, मतलब ग्लोबल तो नहीं है ना, इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इधर उधर से माल मिल ही रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, बट जैसे हर बार ये 750 के आसपास जाता है और वापस और बाइंग आ के ये वापस नीचे। क्योंकि रियल मनी ने बेचा नहीं है ना माल, ट्रेडर बेचता है एडजस्ट करने के लिए, ऑक्शन में खरीदना है, शॉर्ट होता है, फिर उसको माल मिलता नहीं, फिर शॉर्ट कवरिंग होती है, फिर वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, एकदम से सेलर भी छोड़ता नहीं है ना, वो थोड़ा ना छोड़ देगा तुमको, जहां मर्जी ले जाओ मैं इशू करता रहूंगा, इट्स अ बोथ साइड गेम नो, उसको भी पता है कि क्या बियर होना का फाइट है। कि सी एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन इन इंडिया इज अराउंड 5 और तुमको ये 7.5 क्यों दे रहा हूँ, मार्केट रिस्क के लिए इतना सारा, बहुत सारा तो अगर मैं 8 पहुंचा दूंगा तो तुम 9 पहुंचा दोगे, तुम धीरे धीरे बी ग्रेजुअल। बहुत सारा सर एक कल कहाँ पे आ रहा है? टेक्निकल मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट 775 इज अ फेयर वैल्यूएशन। लास्ट ईयर सर जो बॉन्ड लिए हैं उसके सब के आज कैपिटल लॉस, व्हाट कल एक जन कैलकुलेशन दिखा रहा था,
सबके जो लास्ट ईयर लिया इस साल कैपिटल लॉस चढ़ गया, बोला कि हम ये कैपिटल लॉस अभी बुक कर ले, हम उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आई कैन एडजस्ट फॉर माई कैपिटल गेन लॉन्ग, और हम इसी यील्ड पे दूसरा पेपर स्विच कर ले। टैक्सेशन बहुत अच्छा Taxation बहुत अच्छा benefit है। ये बहुत लोग मतलब लॉस में भी लोग खुश हैं। तो हमको बोलते हो अरे सर कल हमको वो गणित सिखाया, मतलब यार गजब का प्लानिंग। अभी यार क्या मार्च को जो शेयर होता है ना जितने भी इनके पास है, वो सब बेचते हैं, लॉस होता कौन सा ये 750 60 दूसरा फाइल में ले लेते हैं। 750-60 के आसपास जाता है, वहाँ पे सेलिंग आता है। फिर ये वापस क्या करना चाहिए फिर सर? क्रेडिट फंड आपको क्या लग रहा है सर अभी? क्रेडिट में तो अभी इंक्रीमेंटली स्प्रेड नहीं है तो क्या ही करोगे लेके, बहुत स्प्रेड तो है नहीं, 7.5 पौने 8 पे तो सोवरेन के एसेट मिल रहे हैं, 8.25 वो पे क्रेडिट है, क्या लेगा? तो 50 बेसिस पॉइंट के लिए इंक्रीमेंटल तो नहीं रिकमेंड करूंगा, पुराना पड़ा तो पड़ा, नहीं तो अच्छा ही गिविंग मोर ओनली, सर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग अच्छे लेवल पे डिप्लॉय करेंगे, तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन सोवरेन विल बी 775 एंड क्रेडिट विल बी 9 प्लस, तब आप इंक्रीमेंटल एलोकेशन देख सकते तो हम लोग को अगर सर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में कॉल लेना है तो अभी लेना चाहिए, यहाँ से स्कैटर मार्च तक करना चाहिए या हैं। वेट फॉर उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि गिल्ड फंड में डाल दीजिए, गिल्ड फंड में ड्यूरेशन कम है। नहीं हम गिल्ड के किसी को डायरेक्ट 51 और 61 का दिलाना सोच रहे हैं, या उसी 2051 का जिसको 3-4 साल का ओरिजिन। उसको भी ऐसे गिल्ड फंड दे सकते हो आप, बिकॉज इस मगजमारी में क्यों पड़ते हो कि बॉन्ड खरीदोगे फिर बेचोगे, उसमें तुमको लिक्विडिटी इशू होगा, प्राइसिंग इशू होगा, ये होगा, 50 पैसे 1 रुपए तो तुम्हारा चला ही जाएगा। गिल्ड फंड दे दो सीधा सीधा प्रॉफिट प्लान में, फॉर यू इट इज गुड, फॉर हिम इट इज गुड, लिक्विडिटी देयर, टैक्सेशन एडवांटेज है। दैट इज ओके सर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो ड्यूरेशन कॉल है वो ड्यूरेशन प्लानिंग मिलेगा ना सर। होना चाहिए, मार्च लेना चाहिए, अब यहाँ से मैं मार्च तो वही मैं बता रहा हूँ ना, आप यू आर वंस यू आर गिविंग फंड मैनेजर विल टेक दैट कॉल व्हेनेवर। आप एग्रेसिव हो कि आप 6 साल से ड्यूरेशन बढ़ाओगे, 6 साल 7 साल नहीं, मैं 40 की ड्यूरेशन बना सकता हूँ सर आज के डेट, सर कोई रोकता नहीं है, आज अवेलेबल प्रैक्टिकली सर बढ़ता है सर, अवेलेबल तो है ही ना, आज पहले ये तो पहले अवेलेबल नहीं थी ना, अब तो अवेलेबिलिटी है। पूरा विजन ही नहीं रहता है। नहीं, इन्वेस्टर का विजन नहीं है, लेकिन मेरे पास पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी, अभी अवेलेबिलिटी है मेरे पास, मैं 15 ड्यूरेशन जा सकता हूँ। हालांकि ये बात अलग है कि सेबी हमको फोर्स कर रहा है कि देयर इज न्यू रेगुलेशन व्हिच इज कमिंग इन कि यू विल नॉट बी एबल टू रीच मच, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, टू बी राइट। अब राइट तो मुझे पता होता तो घर ही बैठ के काम करता। ऐसा But Mukesh ji, just I mean, from a thought process, आप लोग का जो view है, typically Jan to March quarter is where we will see peak of rates. We are also of the similar camp. I think if somebody wants to build duration, any point in time between Jan to March, ideally it's a good time to, or maybe post the policy right now, it will be a good time to allocate in the longer end of the curve. Yes. Till that time, जैसे हम लोग next week we are coming out with a quarterly FMP, which will mature in the month of March. So a lot of corporate investors जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो इसी कश्मकश में है कि यार अभी डाले कि मार्च में डाले, क्योंकि मार्च में टिपिकली सीजनैलिटी रेट्स पीक होते हैं। एडवांस टैक्स भी 15 मार्च का, वी हैव एफएमपी व्हिच इज मैच्योरिंग ऑन 13 मार्च, तो लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर प्लानिंग इन अ वे कि इसमें एफएमपी में डाल दे, और जो पैसा जब मैच्योर हो फॉर एडवांस टैक्स एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वी विल टेक एडवांटेज, बिकॉज टिपिकली 10 से एडवांस टैक्स के आसपास बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी टाइटनेस और जीएसटी आने वाला होता है 20th मार्च को, तो रेट्स टेंड टू peak. So it's a good planning that we are advising investors. But from a longer end of the curve, at least what we are seeing is any point in time when your 10-year breaches 7.5, suddenly yes. people can allocate at the longer end of the curve. Eventually, rates might go up, like Abhishek Bhai view कि 750 to 775 भी जा सकता है rates between March to let's say June when the next boring calendar is also announced. But you can never catch the upside. Yes. So largely be in the above quartile. Start building position in the longer end of the curve. Some large institutional investors are taking that call. हमारा ये view है करके कि RBI will hike up till April. After that, there will be a long elongated pause up till October, December 2024 before RBI will decide to cut action. जैसे आपका view है करके कि economy grow रही है, अभिषेक ने बताया क्या, then RBI does not need to cut rate because the time economy is doing well. When the economy will not do well, only then you need to give it a insulin. तो तब rates he will have to cut. तो अगर स्टेटस को मेंटेन होता रहेगा, so you enjoy the carry, and जब मार्केट रिवर्स होगा, that time you be in the longer end of the curve, so that mark to market का impact आपको मिले.
So cut cycle is from our perspective at this point in time, maybe 1.5 2 years away. Yield curve is absolutely flat between 3-year or rather from 2-year to 15-year. पूरा 10 basis के ऊपर पूरा yield curve है. So depending on your investor appetite, अगर वो exact 3 साल के लिए पैसा डालना चाहता है, then please be at the belly of the curve, which is 3 to 6 year, which is extremely attractive at this point in time. अगर आपका investor बहुत tactical लेना चाहता है, or is looking at long term, then deploy about 10-year or 10-year and above segment. तो वहाँ पे mark to market का benefit आपको. So अभी जो इन्फ्लेशन नंबर जो थोड़ा सा रीजनेबल है, मैं लो तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बैंड के ऊपर ही है. इन्फ्लेशन नंबर के पहले था कि 35 बेस पॉइंट नेक्स्ट पॉलिसी और 25 नेक्स्ट तो 6.5 का लेवल बन गया. अब वो एक्सपेक्टेशन 25 हो गया जो मैं पढ़ रहा था कहीं पे. तो ये 25 है या नहीं अभी 35 का एक्सपेक्टेशन बन रहा है. अगर आप पॉलिसी मिनट्स पढ़ोगे आपके डॉक्यूमेंटेशन तो ये ट्रैजेक्टरी तो पहले दी थी. जब ये 50 बेसिस पॉइंट सब चल रहा है, ट्रैजेक्टरी पहले दी हुई उन्होंने. ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो ये तुमको पता था, तभी उन्होंने ये गाइडेंस दी है, ये स्टांस बनाया है, ये तो मालूम है उनको. ये क्वेश्चन तब आता है जब ये सडनली नीचे चला जाए या सडनली ऊपर चला जाए कि अभी ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई है, अभी हमको कुछ करना पड़ेगा. तो ट्रैजेक्टरी इज एज पर एक्सपेक्टेशन ओनली, और इन फैक्ट स्लाइटली हायर, इट इज नॉट लोअर. सो द ऑड्स इज कि 35 से 50 के चांस थोड़े बढ़ गए हैं. अगर जो मान लो पहले 50 से तो अभी 52 हो गए हैं, 55 हो गए हैं, rather than 45. स्लाइटली इट्स नॉट वेरी, इसका कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता, बट आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि भाई आप ये नहीं डिसाइड करते थे हम आप लास्ट है वहां पे, ये कभी लास्ट आएगा नहीं. जब आपको निकल जाएगा तो आपको दिखेगा अच्छा लास्ट गया. तो आपको बस डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हाँ अभी तो चढ़ रहा है या प्लेटो कर रहा है, जो भी है पीक है कि नहीं है, वो तो जब चला जाएगा तो ही बता सकते. अशोक शर्मा जी आप कुछ पूछेंगे या कमल रामपुरिया जी? हाँ जी, फोन में बिजी है. Sir, good afternoon. Good afternoon, everyone. Nothing as such. I was listening very attentively to your conversation, and practically you have covered everything, and the thought process is also on the same page. That yet we have to see the rate cycle is yet to take time. उसको थोड़ा time है. Yes, sir. Obviously. क्योंकि what you have said that जो हमारा जो currency है and this deficit है जो अपना this trade deficit, sorry, right. So this is a very important data. तो उससे we can definitely have some volatility in the markets, so that even though what is presently going on, we see that हमें ऐसा लगता है कि अभी पीक बहुत नजदीक है, ऐसा लगता है, क्योंकि रेट्स भी नीचे आए हैं, जो ट्रेडिंग हो रही है, जो यील्ड्स भी नीचे आए हैं. बट दिस इज जस्ट ये ट्रेडिंग गेम है, ये ट्रेडर्स साउंड यू कैन से नॉइजेस आर देयर. सो दिस इज ए शॉर्ट टर्म में, बट थोड़ा पर्सपेक्टिव जो जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, आई फुल्ली एग्री विद योर पर्सपेक्टिव. दैट्स ऑल. थैंक यू. थैंक यू शर्मा जी. थैंक यू सर. What is the best other than yield target maturity में what tenure we should? As of now 5 years, 4 साल के ऊपर 5 year वाला ले लीजिए, 4-5 दिन ना ले लीजिए. तो फ्लैटिश ही है, कर्व में बहुत स्प्रेड है नहीं. तो या तो एब्सोल्यूट लेवल 8 तो 10 साल ले लो. अभी फॉर द टाइमिंग 5 year इज ओके. बट अगर ये पूरा मैच्योरिटी तक रन करना है तो भी 10 साल भी ले सकते हैं, बिकॉज जब आप ये बस उतरोगे और 10 साल वाला पकड़ोगे आपको 100 बेसिस पॉइंट नीचे ही मिलेगा ऊपर नहीं. और दिक्कत क्या है कि जितनी बार ये डिस्कशन हुई है, 3 महीने बाद रेट्स ऊपर चले गए, वो सब रोते हैं यार 10 साल गुलाबी 3% रिटर्न है, 2% रिटर्न है. तो जैसे फॉर एग्जांपल गिल्ड फंड है, अगर उसकी रिटर्न लास्ट 1 year में 3% है, तो अगर 10 साल ड्यूरेशन चला रहे थे तो तुम्हारी रिटर्न नेगेटिव होनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखोगे वही पैसिवली मैनेजर स्ट्रेटजी रिटर्न नहीं है. सो समथिंग हैज बेटर हैज हैपेंड, बट पीपल विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट. हालांकि लोगों को 6.5 6.5 अच्छी लग रही थी क्योंकि 3% ओवरनाइट, लेकिन अभी वो खराब दिखने लगा है यार. तो ओवरनाइट से हो गया, तो वो अभी करंट से कंपेयर कर रहे हैं. अब उस टाइम तो अगर 6 मिल जाता तो हमको तो भगवान मिल गए. 7-10% टारगेट मैच्योरिटी फंड लोग भर के ले रहे थे. वही बोला था सेफ्टी के लिए 7 ले रहे हैं, नेगेटिव आ रहा रिटर्न. तो वो 3 साल 4 साल वाले ने फ्लैट हो गया, तो डिजास्टर हो गया.
तो यही बोले थे स्टीप कर्व में मत घुसो सेफ्टी के लिए, आपको सिर्फ मन की शांति मिलेगी, पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं मिलेगा। वही हुआ, नहीं सुना, लेकिन अभी फ्लैट हो गया है तो अभी आप देख सकते हो, और ऊपर वाला भी ले सकते हो। ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए है तो नो डाउट अबाउट इट, बट डोंट थिंक टू मच ऑन वॉलेटिलिटी, यू हैव टू प्रिवेंट फॉर द वॉलेटिलिटी। यहाँ तो ऊपर कोई भी कर्व इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इफेक्ट रहते हैं। ड्यूरेशन अगर अपना 4 साल के ऊपर है तो 4 साल बाद आप किताब को खोल के देखोगे तो सबकी रन रेट सेम रही होगी, इसमें आपके पास ऑप्शन है कैपिटल गेन लेने का। बाकी जो मेच्योर हो जाएंगे, बाकी को तो बस में घुसना पड़ेगा, आपको शायद जगह ना मिले, आप तो अंदर बैठे हो, मजे कर रहे हो, आपकी गाड़ी चल रही है। क्रेडिट जैसे भी हुआ, क्रेडिट जैसा आपको और भी कुछ दिखेगी, और भी बड़ा एमएफआई बड़ा, ये गेम चलता रहेगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ग्लोबली, कौन किधर कहाँ लिंक्ड है, किसकी कहाँ सांप सीढ़ियां गेम में कौन करेगा। ये जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन ही होगा एक दो बस, जो वो जब तक होगा नहीं तब तक ये आगे अल्टीमेट सोल्यूशन जिस दिन मालूम चल जाए एक दो बस्ट हो गया तो जब रीमन कोलैप्स हुआ सितंबर हुआ, तो इनको पता चल गया कि ये बिल्डिंग लिंक्ड है और ये प्रॉब्लम है, इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम। नहीं तो पूरी बिल्डिंग गिर जाए। इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया सारा, आप सारे कैश इन्फ्यूज कर दिया, ये आज दिख रहा है इसका impact। हो ना हो इसके बीज तब बो दिए गए, और ये सब डेरिवेटिव ये वो जो जो कर रहे थे, तो आज का रिजल्ट दिख रहा है। अब प्रॉब्लम होगा, अभी तो उस कैपेसिटी नहीं है करने, अगर कोई बड़ा कोलैप्स हो गया, अभी तो तुम रेट बढ़ा रहे हो ना, अभी तो तुम नहीं बोल सकते नहीं मैं रेट काट देता हूँ। और फिस्कल इंक्रीमेंट आपने देख लिया, फिस्कल कोशिश की उन्होंने करने की, क्या हुआ, जैसा भद्दा मजाक बन गया पूरे वर्ल्ड ओवर। यू सीन दे डोंट हैव फिस्कल स्पेस, सेंट्रल बैंक के पास स्पेस नहीं है, क्योंकि आप मॉनेटरी ईजिंग कर नहीं सकते, बैलेंस शीट एक्सपेंशन कर नहीं सकते, तो क्या करोगे, कैसे लाओगे। तो ये बहुत बड़ा अटक गया है गेम अभी यहाँ पे आके। अगर एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो तुम बस दोनों ऑलरेडी हाथ में पड़े हुए लोग, किधर से बचाओगे। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। गेट में अभी फ्लोटिंग रेट ले रखा है, उसका कोई स्पेसिफिक या आपको वहाँ पे जी, मैंने पहले भी इफ यू रिमेम्बर मैं बात हुई थी, तो कर्व फ्लैट और रहने वाला है, ये मैंने बोला तो अभी फ्लैट हो जाए, तो कितना फ्लैट हो गया है। एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द यील्ड कर्व इज समवॉट सिमिलर टू व्हाट इट इज, स्लाइटली मोर फ्लैटर, जैसे हमारी नॉर्मल इकोनॉमी है। एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस 10-10 साल में एक बार आते हैं, एक बार आया चला गया। अब करंट सेटिंग 8% उसका वाइटिंग हो जाएगा मार्च में, अभी 7.5, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 7.25, तो ये हमेशा 10 ईयर और 30 ईयर के ऊपर ही रहने वाला, हार्डली अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ मैसिव रेट कटिंग साइकिल कमिंग इन, वो तो बहुत दूर की बात है। रेट कट होगा तो भी इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना हाइक नहीं, तो यूएस रेट काट भी देगा तो हम रेट काट नहीं पाएंगे उसके नीचे रेट, यदि जब आपको रिवर्सल लगेगा तब आप तो आप रिसीव कर लेंगे तब। इसीलिए रिटर्न हमारे बेटर हैं vis-a-vis any fixed rate instrument because of this, because अप्रूवल हमारा सबसे ज्यादा रहने वाला है। This is one of the, this strategy is going to be one of the best performing strategies for next, because रेंज में जब मार्केट रहेगा, इससे बेटर एसेट ही नहीं मिलेंगे। 50 basis का accrual is higher than, बट अभी जैसे रैली हो गया 7.5 7 में, तो वो अंडर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू अदर्स। up to market accrual, ओवरऑल रिटर्न का तो इम्पैक्ट आएगा ही ना, आप में कम आएगा, दूसरे में ज्यादा आएगा, बिकॉज उसकी अप्रूवल कम रहेगी ना, मेरे पास स्वैप तो है ही, मैं स्वैप से खेलता रहता हूँ। 6.80 पे हमने हेज कर दिया था, 6.50 पे अनलॉक कर दिया, तो 3 पॉइंट कमाए ना मैंने ऊपर से, मार्जिन कैरी, इसीलिए तो आप 3 महीने 6 महीने का रिटर्न दे दूंगा। वो 10-12%, 8-9% कहाँ से आया है, इतना रैली तो हुआ नहीं, किसी भी का भी रिटर्न नहीं है, क्यों नहीं है वो, इसीलिए नहीं। लास्ट मई से इंटरेस्ट रेट साइकिल हाइक चालू है, वेर इन नवंबर 6 महीने का अगर आप 5 ईयर इंडेक्स या 10 ईयर इंडेक्स का रिटर्न देखो, तो आई थिंक इट इज 2 to 3%, गिल्ट हैज डिलीवर्ड 6 प्लस से 6.5 का रिटर्न, तो दैट्स प्योरली कमिंग, योर इंटरेस्ट रेट साइकिल, आई थिंक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स विल डू वेल,
in a cycle where we are looking at an extended pause, this accrual is much higher than corresponding gilt or SD. It's भी है ना सर, स्ट्रेच भी दिया हुआ है ना G6. Let's but ये it's a good strategy for some of your clients who are looking at peaking a trade cycle. Invest in 3 year, 3-month FMP and then switch out. आप लोग का वो कोटक एसडीएल जो 2000 अभी लास्ट Open. एसडीएल उसमें हमने एक एनालिसिस की थी जब हमने देखा था कि या गिल्ड फंड में डालो या कुछ बॉन्ड खरीद लो on a 10-year rolling basis, gilt fund has outperformed the bond by 50, 100 depending on time to time. Ajaz has always got outperformance. वो तो जैसे एसडीएल का स्प्रेड के हिसाब से आप लोग को भी उसमें क्या उसमें spread is on the lower side पर ठीक है because investment के लिए ले रहे हो तो आप बोल रहे कि एफएमपी जैसा सोच के देते थे FMP जैसे सोच के ले लो। ट्रेडिंग के लिए तो spread आज कम है ज्यादा because spread is a function of 10 year नीचे वाला, ऊपर वाला तो वहीं रहने वाला है, नीचे वाला जो चला गया spread बढ़ गया वहीं आ गया तो वहीं आ गया तो आपको तो ना एडवांटेज मिला उसका। So relative trading के लिए है, उसका कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए अपना और डोंट थिंक टू मच कि वेटेज कितना है क्या है क्या है, सब सॉवरेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो 3 year plus अगर आपका है तो बहुत अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच प्लेजर एज यूजुअल। Thank you so much. थैंक यू सो मच Thank you. थैंक यू सर One of the most positive person that I feel in the industry. दिनेश जी। मुझे याद है डायरेक्ट प्लान आया, मैं उसके बाद इनको मिला था, बीच में वो ब्रोकरेज पे जीएसटी लग गया, तब मैं मिला था सर, बोले ये तो हो गया ना, अभी आगे देखो। बाकी सब लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं यार ये हो रहा है वो हो रहा है क्या करेंगे। ही इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। जो हो गया सो हो गया, जो अपने कंट्रोल में नहीं उसके बारे में क्यों देखेंगे। ऑल्सो आई ऑल्सो रेलेट कंप्लीटली, आई थिंक द सेम वे। ठीक है जो हो गया क्या करूं उसका आगे देखो। कंट्रोल में वो everybody does mistake. People who win who take the second step. Right? दिनेश जी बहुत pragmatic है हमेशा। Right sir, thank you. चलिए सर। आएंगे एक सेकंड मीटिंग 3:30 बजे वाले बुला इक्विटी का मीटिंग था ना, वो बोल दिया था वो बोला ना कि 200 आदमी से मिल लेंगे। लेकर गया था वो कौन कौन